حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون گرد کر دیتا ہے۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی، شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں۔ تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ پریشان نہ ہوں، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ پاک نے تھامنا ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض دفعہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا اگر پڑھانے والا با یزید بستامی ہو اور پڑھنے والی راویہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی نسلیں اجاڑ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں اسے یقین دلانے کا فائدہ۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ رو۔ شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفان کو تو ہماری نمازیں ہی روکے رکھتی ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے، دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیا کریں کیونکہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت حضرت ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت اور مرد تک پہنچائیں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھائے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری عورتوں کی دیکھی۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا دوسروں چاہیے۔ کو اپنے مال، اسباب، عہدوں سے نہیں، اپنے اخلاق، کردار اور نیک عمل سے مروب کریں۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ زندگی گزارنے اور جینے میں بڑا فرق ہے۔ گزارنے کے لیے بے ہمت اور جینے کے لیے باہمت ہونا پڑتا ہے۔
भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। दुनिया के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चिड़िया को जितनी मोहब्बत अपने बच्चे से है, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा अपने बंदे पर रहम फरमाता है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। ईमान अचानक गायब नहीं होता, चेहरे का नूर अचानक ख़त्म नहीं होता, नमाज़ों से सुकून अचानक नहीं चला जाता। पहले खौफ खुदा जाता है, फिर नमाज़ें जाती हैं, फिर हया, फिर पर्दा और फिर ईमान चला जाता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। एक शादीशुदा औरत की कामयाब ज़िंदगी का दारोमदार इसके शौहर पे है। शौहर का ताबन होगा तभी औरत बसेगी, चाहे महल में रहे या झोंपड़े में। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर खुद औरत इजहार मोहब्बत करे। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा कि क्या कोई चीज़ या लम्हा मौत से भी ज़्यादा तकलीफ दे होता है, तो हकीम लुकमान ने कहा, हाँ, जब कोई शरीफ इंसान किसी मजबूरी में किसी कमज़ोर इंसान के आगे दस्ते सवाल दराज करे। ताल्लुक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, ताल्लुक ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हिकमत एक दरख्त है जो दिल में पैदा होता है और ज़ुबान पर फल लाता है। आप जो देखते हैं इस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। जिंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफरत? मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं तल्ख हकीकत। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। आजकल तो रिश्तेदार इन लकड़ियों की मानद हो चुके हैं, जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। बुरा भला कह लो, गिरबान पकड़ लो, मगर कभी भी दोराहे पे लाके किसी का साथ मत छोड़ना, बंदा बेबस हो जाता है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। और फिर मर्द की लापरवाही औरत की ज़हनी बर्बादी का सबब न बनती जाने है। कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी औरतों को मोहताज। तोड़ना और इन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह का से भी एक डरो। जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। सबसे मजबूत इंसान कौन है? अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे जो पत्थर उठा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा कि ये पत्थर उठाकर सख्ती मजबूती हासिल करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे भी क़ुव्वत वाली चीज़ या मजबूत चीज़ ना बताऊं? या इसी तरह की कोई बात कही, वो शख्स जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है वो इससे ज़्यादा क़ुव्वत वाला और रिश्ते मजबूत और ताल्लुक निभाना भी एक फ़न है, जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत रहमान होती है। रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से इसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि इसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि इसने शैतान को देखा है। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। लोगों को आप में तब्दीली नज़र आ जाएगी, लेकिन अपना वो रवैया नज़र नहीं आएगा जो इस तब्दीली की वजह हद के बने। बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी इस ठीक। कदर खूबसूरत है कि इसे खुद से ख़त्म कर देना एक ऐसा अमल है जिसके बाद आप पछता भी नहीं सहने सकते। वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हक पर सिर्फ वो शख्स सब्र करता है जो हक की फजीलत को अच्छी तरह जानता अगर है। तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं
तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, इनका मरना आसान नहीं हो। इंसानी समझ का म्यार इतना है, अगर इसे जानवर कहा जाए तो नाराज़ और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। हालांकि शेर भी तो जानवर है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी खता हुई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बना दीजिए, आमीन। मैंने इंसानों से मुतासर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक की नाफरमानी की गई। तकलीफ़ इंसान नहीं देता, इसके अल्फाज और लहजे चीर देते हैं, और कभी कभी सामने वाले की गलत सोच जिंदा मार देती है। सुकून चाहते हो तो मकानों पर नहीं, इंसानों पर खर्च करो। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। ज़बान से माफ़ करने में वक़्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। कहती हूँ कि इंसान इतने गुनाह करे जितना इसमें सज़ा सहने की हिम्मत हो। रब की कसम, रब की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन जो लोग इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ते रहे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर रहम फरमाता है। और जो लोग गुनाह करके इसका इज़ाला करने के लिए भलाई, खैरात और सदक़ात कसरत से दे तो रब्बुल आलमीन की ज़ात गफूरुर रहीम। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता, इनके सामने अपने अल्फाज ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। माशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश रहते हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाजी से, और कभी गलत फहमी से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक़ से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक का अज़ाब हटा लिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है, कभी सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। जो शख्स आपके किरदार और इखलाक से बुग़्ज़ रखे, इसे तलवार से नहीं सब्र से सज़ा दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को ऐसी चीज़ों ने घेर रखा है जो इंसान के नफ्स को नापसंद है, और जहन्नम को ऐसी चीज़ों ने जो नफ्स को मरगूब है। अगर कोई किसी के जज्बात के साथ खेल कर खुद को तेज़ तरीन समझता है तो वो तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। ज़िंदगी बहुत तल्ख़ है, और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना स्वाब समझते हैं। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़रूर साथ जाते हैं। पागलों से दोस्ती करो, समझदार लोग मुश्किल में काम नहीं आते। चाहे जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदलते हुए लहजे, मैंने हर बार साथ देता सिर्फ खुदा देखा। चाहत के जो दरख्त थे वो बांझ हो गए, खुदगर्जियों ने रख दी मोहब्बत समेट के। बाज़ लोग आपको अपनी आंखों से नहीं बल्कि उन लोगों की आंखों से देखते हैं जो आपके अयूब बयान करते हैं। ऐसे अंधों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करना बेसूद है। कभी भी किसी को कमतर ना समझना, क्योंकि 10 रुपए का पेन भी 10 करोड़ का चेक साइन करने के काम आता है। इंसान जो जहर दूसरों को देता है, इसे चखे बगैर नहीं मरता। एहतियात कीजिए। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हया और ईमान साथ साथ हैं, जब इन दोनों में से एक उठा लिया जाता है। मान लिया कि मामला तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम भी मान लो कि जिसके हाथ में सारे मामलात हैं वो बहुत गफूर रहीम है। कभी कभार खामोश रहकर लोगों के रवैयों को महसूस करें। यकीन जानिए आप बहुत से गलत फैसलों से बच जाएंगे। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पे होने की। इमाम हुसैन। कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर याद रखें, जो लोग आपको गलत समझते हैं वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि
ऑपरेशन नज़र का हो सकता है, नज़रिए का नहीं। कबूल करने से पहले जो मर्जी तहकीक करो, मगर जब कबूल कर लिया तो निभा जाना ही कमाल। हम नफ़रतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। इंसानों के अंदर दो कमज़ोरियाँ बहुत आम हैं: भुलाने के काबिल बातों को याद रखना और याद रखने के काबिल बातों को भुला देना। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफात से पहले दलील रखना आला शख्सियत की अलामत है। मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है, और जो इज़्ज़त नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हालात मुझे कमज़ोर करते चले गए और मेरा अल्लाह मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत करता रहा। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग इसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक्त साथ नहीं देता और कभी कभी आसपास के लोगों में भड़काने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है। दरख्तों पे औकात से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम: आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फल से महरूम हो जाते हैं और इंसान अपने रिश्तों से। पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं होती। ये मेरा ज़र्फ़ है कि मैंने इसको छोड़ दिया, वरना लोग तो सांपों को मार देते हैं। जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं, इनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि यही असल में आपके फ़ैन हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज़ है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो इस शख्स को बेवकूफ़ मत समझो, बल्कि समझ जाओ कि इसने तुम्हारे ज़र्फ़ से बढ़कर तुम पे एतमाद किया, यानी तुम कम ज़र्फ़ कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है।